Good morning, learners. Today we will discuss in this video a new topic that is on comparing the various forms of government. Here we will basically discuss unitary and federal form of government. In this video, we will discuss unitary government meaning, features, advantages and disadvantages, and meaning, feature, advantage and disadvantages of the federal form of government. In the next video, we will discuss the differences between these two forms of government. So, unitary government implies what? So, unitary government is a kind of government in which a single power, which is known as the central government, controls the whole government. In fact, all powers and administrative divisions, authorities lie at the central place. UK, Afghanistan, Italy, China, Saudi Arabia, Spain, etc. are the examples of unitary government. Unitary government क्या है? यूनिटरी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जहां पे क्या होता है, जो होल गवर्नमेंट है वो कौन कंट्रोल करता है? एक सिंगल पावर. बेसिकली हम लोग उसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं. सो यूनिटरी गवर्नमेंट कौन कौन सा कंट्री में है? यूके में है, अफगानिस्तान, इटाली, चाइना, सऊदी अरबिया, ये सब है. So coming to the features of unitary government, first feature we can say concentration of powers. The center is omnipotent in this type of government. A unitary state may be divided into small units for the sake of administrative convenience, but the units do not have any constitutional status of their own. The units are not autonomous and independent in any way. So एक feature है वो क्या है? Power concentrate रहता है. यहाँ पे सेंटर ज्यादा पावरफुल रोल प्ले करता है. हाँ, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए स्मूथली एक यूनिटरी स्टेट क्या कर सकते हैं कि स्मॉल स्मॉल यूनिट में पावर डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये जो स्मॉल यूनिट्स है उन लोगों का कोई मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं होता, और ये जो यूनिट्स है वो सब ऑटोनोमस भी नहीं है और इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता. Then another feature is single government. In this type of government, there is a single set of governmental apparatus. There is a single supreme legislature, single executive body, and one supreme judiciary. Another feature is a written or unwritten constitution. A unitary government may or may not have a written constitution. France has a written constitution, but England has none. मतलब एक यूनिटरी गवर्नमेंट जहां पे होगा जिस उस कंट्री का क्या नहीं होता, कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ भी होता है, कभी कभी नहीं भी लिखा हुआ होता है. जैसे इंग्लैंड पे जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन फ्रांस पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन दोनों क्या है? यूनिटरी गवर्नमेंट वाला कंट्री है. देन अनदर इज a unitary state may or may not have a rigid constitution. As for example, England and France are unitary states. The constitution of England is flexible, but that of the France is slightly rigid. मतलब क्या होता है, यूनिटरी स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो रिजिड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. जैसे इंग्लैंड और फ्रांस दो यूनिटरी स्टेट्स है, लेकिन फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसीजर क्या है? थोड़ा रिजिड है, हार्ड है इन कंपैरिजन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड. देन अगेन इन ए यूनिटरी स्टेट there is no need of having special judiciary with wide powers of judicial veto in the unitary government. Coming to the advantages, क्या क्या एडवांटेज है यूनिटरी गवर्नमेंट का? सो वी कैन से फॉर कंट्रीज दैट आर स्मॉलर इन साइज, यूनिटरी स्ट्रक्चर इज मोर सुटेबल. इट इज लेस एक्सपेंसिव एज देयर इज नो एक्सपेंसिव अथॉरिटी टू बी फंडेड. Unitary structure is quick in decision making as all the decisions are made by a single authority. There is no chance of conflicts as all the power is vested with the center. मतलब ये जो यूनिटरी गवर्नमेंट इसका बहुत सारे एडवांटेजेस है. लाइक जो कंट्री
का साइज स्मॉल है, वो लोगों के लिए जो यूनिटरी स्ट्रक्चर है वो क्या है, सबसे ज्यादा सुटेबल है। और ये लेस एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि एक ही गवर्नमेंट है, उसका कोई मतलब एक्सटेंसिव ब्रांचेस नहीं है, तो एक्सपेंस कम होता है। देन डिसीजन मेकिंग भी क्विक होता है, क्योंकि सब डिसीजंस एक सिंगल अथॉरिटी ही लेता है। उसके बाद जब एक सिंगल अथॉरिटी होगा, देयर इज लेस चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का कोई मतलब चांस ही नहीं है, नो चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। डिसएडवांटेजेस, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है? सो इन अ यूनिटरी सिस्टम is not suitable for geographically large countries, because in unitary system full power is only in the hands of the center, and they may probably not have access to rural areas. Central government may not have any knowledge about problems and needs of the people living in rural areas. There is a lack of efficiency, as the central government is usually burdened with lots of responsibilities and functions. Under the unitary form of government, the country may face unequal development and growth. The central government can find it extremely tough to develop every part of the nation at the same time without delegation of authority and powers. मतलब क्या होता है, डिसएडवांटेजेस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो कंट्री जियोग्राफिकली मतलब बड़ा कंट्री है, टेरिटरी ज्यादा है, वहां पे ये जो यूनिटरी सिस्टम है ये क्या नहीं है, सुटेबल नहीं है। क्योंकि यूनिटरी सिस्टम में एक ही गवर्नमेंट होगा, तो ये जो सिंगल गवर्नमेंट है वो बड़ा एरिया होने से सब पार्ट्स में उसका मतलब एक्सेसिबल होना ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद क्या होता है, जब एक ही गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो बर्डन भी ज्यादा होगा, तो कोई भी काम इफिशिएंटली नहीं होगा, मतलब यहाँ पे इफिशियंसी का कमी होता है। Then we have to understand what the federal government is. So federal government is a system where power is shared between and a national government and regional governments. In federation, provinces enjoy some rights as are available to the independent states. However, international diplomacy, national security, foreign affairs, and other kinds of international dealings are solely made by the फेडरल गवर्नमेंट। सो ये फेडरल गवर्नमेंट क्या है, फेडरल गवर्नमेंट ऐसा एक सिस्टम है जहां पे क्या होता है, नेशनल और रीजनल गवर्नमेंट के बीच पावर शेयर होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, और जो यूनिट्स है, स्टेट्स है, प्रोविंसेस है, वो लोग क्या करते हैं, कुछ राइट्स एंजॉय करते हैं बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट। लेकिन जो इंटरनेशनल इश्यूज लाइक डिप्लोमेसी, नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स, ये सब जो इंटरनेशनल इश्यूज है वो जो फेडरल यूनिट है वो लोग डील नहीं करते। कौन डील करते हैं, द नेशनल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट है पाकिस्तान, इंडिया, ब्राजील, स्विट्जरलैंड, कनाडा, ये सब कंट्री में। सो कमिंग टुवर्ड्स द फीचर्स, first feature we can say, in this type of government, powers of administration are divided between the center and units. In this form, both the center and units have their separate sets of governmental apparatus. Like America is a federation of states. States have therefore separate legislature and separate executives. Written constitution. A federal government must have a written constitution. So, बहुत सारे फीचर्स है वहाँ। एक फीचर हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, पावर्स का डिवीजन होता है बिटवीन द सेंटर एंड यूनिट्स। उसके बाद ये जो सेंटर और जो यूनिट्स है उन लोगों का क्या रहता है, सेपरेट सेट ऑफ गवर्नमेंट रहता है। देन जो फेडरल स्टेट्स है वहां पे क्या रहता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ होता है। एक्चुअली ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है। जो एग्रीमेंट होता है वो जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स मिलके फेडरेशन फॉर्म किया है उन लोगों के बीच जो एग्रीमेंट होता है वो ही मतलब एग्रीमेंट को बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फेडरल स्टेट। Then rigid constitution. The constitution of a federation is more or less rigid. It is regarded as a sacred agreement. फेडरेशन जो मतलब
कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, रिजिड होता है, हार्ड होता है, इतना इजीली अमेंड नहीं किया जा सकता और वहां पे कोई चेंजेस इतना इजीली नहीं ला सकते, ये हम लोग बोल सकते हैं. देन स्पेशल जुडिशियरी इन अ फेडरेशन देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्प्यूट्स अराइजिंग बिटवीन द फेडरल सेंटर एंड द यूनिट्स और बिटवीन वन यूनिट और अनदर. मतलब जो फेडरेशन होता है या फेडरल गवर्नमेंट जहाँ पे होता है वहां पे क्या रहता है, एक स्पेशल जुडिशियरी का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि पावर्स सेंटर एंड जो स्टेट है उन लोगों के बीच डिवाइड होता है. कभी कभी क्या हो सकता है, सेंटर और जो स्टेट उन लोगों के बीच डिस्प्यूट हो सकता है, नहीं तो जो स्टेट्स है उन लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो सकते हैं. तो ये जो डिस्प्यूट है वो रिजोल्व करने के लिए क्या चाहिए, स्पेशल जुडिशियरी. सो कमिंग टू द एडवांटेजेस, क्या क्या एडवांटेज है फेडरेशन का और मतलब फेडरल गवर्नमेंट होने से. सो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स लीड्स टू डिक्टेटरशिप. द फेडरल सिस्टम safeguards the separation of powers and thus prevents tyranny और dictatorship. मतलब जब पावर एक के हाथ में कॉन्सेंट्रेट रहता है तो वहां पे डिक्टेटरशिप होने का चांस है, लेकिन फेडरेशन में क्या होता है, पावर डिवाइड रहता है तो वहां पे डिक्टेटरशिप का पॉसिबिलिटी नहीं होता. देन as power is divided between the union and the states, this structure is efficient in terms of governance and administration. The state or provinces enjoy some separate rights. The division of power brings excellent utilization of resources. The central government can focus more on international affairs and country's defense, while the state government can deal with their regional needs. और क्या एडवांटेज है कि जब मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो जो स्टेट्स और प्रोविंसेस है उन लोगों को क्या मिलेगा, कुछ सेपरेट राइट्स मिलेगा. और वो लोग क्या कर सकते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लोग जो रीजनल और लोकल नीड्स है वो केटर कर सकते हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्राइमरी फोकस कर सकते हैं जो इंटरनेशनल अफेयर्स है. किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर क्या नहीं होगा, बर्डन नहीं होगा. तो जिस गवर्नमेंट का जो काम है उसके ऊपर वो लोग ज्यादा क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं और इफिशिएंटली कर सकते हैं वो काम. देन डिसएडवांटेजेस, क्या क्या डिसएडवांटेज है. So this system of government is costly because there are many people elected to the office both at the center and in the states. Too many elected representatives with overlapping roles may lead to corruption. It enables regional inequalities as the natural resources, employment opportunities, etc. are different in every region or state. The decision-making process becomes more difficult sometimes. So, disadvantages हम लोग बोल सकते हैं, ये जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो कॉस्टली है. उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वो डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सब के पास क्या है, फ्रीडम है, इंडिपेंडेंस है. तो वो लोग जब कोई डिसीजन लेते हैं इंडिपेंडेंट ले लेते हैं, तब क्या हो सकता है, नेशनल और स्टेट्स जो मतलब यूनिट्स है उन लोगों के बीच क्या होता है, डिसीजन लेने में डिफिकल्टीज अराइज हो सकता है. सो नेक्स्ट जो वीडियो है वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या डिफरेंसेस है ये दोनों गवर्नमेंट फॉर्म के बीच.